Hello everyone. So we have finished that exercise, right? So today we will study the introduction part of equation of tangent and normal to the curve. But before that, we will do one thing. We will study the basic concepts. So now everyone listen to me. Suppose that we have one curve, right? This is one curve. Chalo. Now if I draw one tangent means what? That is passing through one point of this curve. So here ठीक है, एक ही पॉइंट पे टच करेंगे, right? So now here if I tell x1 comma y1, so this point is x1 comma y1. Now you understood what is a tangent. Now what is a normal? ठीक है, नॉर्मल किसे कहेंगे? इट इज परपेंडिकुलर मेकिंग 90 डिग्री. तो नॉर्मल क्या है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. You note down this in your book, right? What is normal? A line perpendicular to tangent and तो ये है नॉर्मल, राइट? मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की ना, परपेंडिकुलर, ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड परपेंडिकुलर है, राइट? नाउ यू नो दैट टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वॉट एवर इट मे बी, बट टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन. तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड 11th का, तो वो हमें थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. तो आई विल बी जस्ट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम यू नो ओनली, बट फिर से फ्रेशअप हो जाएंगे, राइट? बिकॉज ऑफ दैट टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. चलो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्लोप क्या है. ठीक है, स्लोप क्या है? सी, अ वेरी बेसिक थिंग दैट इज मान लो कि ये एक लाइन है एल. ठीक है, ये लाइन है एल. वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज इट इज मेकिंग एंगल थीटा. एंटी क्लॉकवाइज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट? तो व्हाट विल बी द स्लोप? एम इक्वल टू टेन थीटा. ठीक है, सो दिस ऑल्सो नोट डाउन. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग. ये जो है पूरा अलग है, राइट? ये भी अलग है, बट दिस इज अ स्लोप. हाउ टू फाइंड अ स्लोप, राइट? नोट डाउन दिस इन योर बुक.
सी नाउ आई विल टेल यू इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन. समझ लो कि एक लाइन है, वो जो स्लोप है m और पॉइंट से पास हो रही है x1 y1. ठीक है, दिस इज वन लाइन, स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. ठीक है, स्लोप एक लाइन है, वो स्लोप इज m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1. तो इसकी जो इक्वेशन होगी दैट विल बी y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. ठीक है, this we have studied in our previous class also. Now you consider that suppose this line is passing through the origin. If it is passing through the origin, so if it is passing through the origin, then x1 and y1 will be 0. If you put 0, then if it is passing through origin, then it is y minus 0 equal to m into x minus 0. So y is equal to mx. ठीक है, y is equal to mx. चलो, तो this also you note down this in your notebook. Now second point. ठीक है, second point. Parallel lines. ठीक है, parallel lines. For example, these two lines. तो भाई उसमें तो स्लोप था, इसमें तो स्लोप कैसा है? ठीक है, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, राइट? सो m1 इक्वल टू m2 इक्वल स्लोप्स. Then perpendicular lines. So perpendicular lines, ठीक है, when two lines are perpendicular, then m1 into m2 is equal to -1. दोनों के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करेंगे we will get -1, राइट? फोर्थ पॉइंट, मान लो कि कोई एक लाइन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सी इन दैट वी वर हैविंग स्लोप मीन्स एंगल वाज थीटा, बट हियर what it will be, it is not there only. So what will be there? Slope of line parallel to x axis is 0. Slope of line parallel to x axis is 0, right? And same case for y, means parallel to y. ठीक है, it will make angle of 90 degree. तो tan 90, what is m equal to tan theta? तो tan 90 is not defined, infinity. The same thing, slope of line parallel to y axis is equal to infinity. ठीक है, तो these things are very much important. Slope of line parallel to x axis means this is for example that you can come to know how it is 0. See, दोनों का मतलब here that angle was making theta, so we were writing m equal to tan theta, but here what angle? No angle is made. Here 90 degree is made, so m equal to tan theta, m equal to tan 90. Tan 90 is not defined, means it is infinity. ठीक है, चलो, तो these were the basic things that I wanted to tell you. So now we will be going to the next topic. Before going to that, I will just tell you some parts. 0 by 1 equal to 0. 1 by 0 equal to infinity. And 1 by infinity
इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको काम आएगी, ठीक है। 0/1 इक्वल टू 0, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0, दिस यू मस्ट नो, राइट। चलो, नाउ वी विल स्टडी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। अब मान लो कि आपके पास है this is the thing, right? x0 comma y0, this curve is there and it is a tangent, so this is a point x0 comma y0. Now this is nothing but y equal to fx, y equal to fx, ठीक है। Now to find the slope of tangent on any curve, any point, then differentiate that curve and keep that point, means what to do। अगर हमें इसका स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करना है कोई भी पॉइंट, ठीक है। मान लो कि कोई भी पॉइंट पे या कोई भी कर्व पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे, कोई भी कर्व पे हमें क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट दैट कर्व, इन शॉर्ट वेरी सिंपल थिंग। अगर आपको स्लोप ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करना है कर्व पे जो पॉइंट है उसका, तो आप क्या करो, वो जो मतलब है ना कर्व है उसे आप क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। लेकिन वही पॉइंट, इसी पॉइंट पे, जैसे कि ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स एट x0 कॉमा y0, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स एट x0 comma y0, this is what slope of tangent of curve y equal to f of x, this is what slope of tangent of curve y equal to f of x, एट x0 कॉमा y0, ये पॉइंट है x0 कॉमा y0। तो इससे हमें क्या पता चला, वी केम टू नो दैट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट गिव्स अस द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व एट दैट पॉइंट। हमें क्या देता है, वो स्लोप देता है। मतलब मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया यहाँ तक तो भी कोई मतलब डोंट वरी, नाउ यू लिसन। अगर हमें कोई भी कर्व पे एक पॉइंट है, मतलब वहाँ पे एक टेंजेंट है, ठीक है, और उस टेंजेंट का हमें स्लोप ढूंढना है, तो हमें सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि वो जो कर्व है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे कर्व है, तो एफ ऑफ एक्स को मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो है तो डिफ्रेंशिएट कर दो आप, ठीक है। वो जो कर्व को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑनली। x1 y1 है तो x1 y1 आएगा, यहाँ पे x0 y0 है तो x0 y0 आएगा, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग, ओके। तो यू विल गेट इट, वी विल डू द एग्जाम्पल्स, राइट, डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल डू द एग्जाम्पल्स एट दैट टाइम, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, राइट। तो आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल, राइट। हाँ, अब हम इसका फाइनल आंसर ढूंढेंगे, राइट। इसका
अब हम यूज़ करेंगे पॉइंट स्लॉप फॉर्म, ठीक है, पॉइंट स्लॉप फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस व्हाट इज y1, y0, m व्हाट इज m, m क्या रहेगा यहाँ पे f डैश ऑफ x, बट f डैश ऑफ x, लेकिन यही पॉइंट रखेंगे हम f डैश ऑफ x, एक्चुअली इट इज f dash of x, but it is at this point x, so here x, y, then here y, but here x0, so it will be getting x0 only. ठीक है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो पॉइंट जो है वो x0 y0 है, एंड f डैश ऑफ x, बट हियर एट दिस पॉइंट, तो x की जगह पे x0 रख देंगे, राइट। चलो तो एक एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, राइट। दिस वाज जस्ट द थियरी पार्ट दैट वी हैव कवर्ड, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। नाउ वी विल डू एग्जांपल। You have your question, that is find slope and equation of tangent to the curve y equal to x cube minus x square, x cube minus x। हाँ, हमें क्या करना है, फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। ये कर्व दिया है, टू द कर्व मीन्स ये कर्व है एट x इक्वल टू 2, देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, x कॉमा वाई, बट यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू दी है, y इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन y, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना है, राइट। सी एज आई टोल्ड यू, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। y इज गिवन x क्यूब माइनस एक्स, बिकॉज वी वांट टू फाइंड स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स इज गिवन, सो डिफ्रेंशिएट इट, it is nothing but dy by dx 3x square minus, ठीक है। now what can be done, we have to keep at point 2, हमें पॉइंट भी रखना है ना, लेकिन एक ही पॉइंट है यहाँ पे, x इक्वल टू 2 है, y की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो do one thing, dy by dx at x इक्वल टू 2 square minus 1, 2 to the 4, 4 to the 12 minus 1 11, ठीक है। ये तो हमारा आया मतलब dy by dx at x इक्वल टू 2। नाउ सी, हमें पता है कि x की वैल्यू 2 है, मतलब यहाँ पे जो है पॉइंट बनेगा, राइट। यहाँ पे जो पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 2 है, बट व्हाट अबाउट y, what is the value of y over here, y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। तो उसे फाइंड करने के लिए हम ये इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख देंगे, वी विल कीप x इक्वल टू 2 इन दिस, सो y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स, 2 क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 6, ठीक है। तो 2, 6, now equation we will be getting y minus y1, that is nothing but 6, what is n, this 11, x minus 2, now you solve this, y minus 6 equal to 11 into x minus 2,
you will get the answer 11x minus y minus 16 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो, तो नाउ आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। चलो, तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन till here, if you have any confusion, then you let me know, right? So this was a very important thing which was to be discussed. Now we will be discussing later on the examples and everything. So thank you very much, have a great day.